So power factor. What is power factor? By the very definition, we know that when we talk about the nature of alternating currents, we find that there is something called lagging power and leading power, and that happens because of the nature of the load, which could be of capacitive nature, which could be of inductive nature, it could be of a resistive nature, or it could be a combination of resistance, inductance, and capacitance. It could be a combination of anything, meaning capacitance, reactance, and resistance. In fact, if we talk about this issue of resistance, capacitance, and inductance, probably we have studied in the first year of the electrical engineering itself, elements of electrical engineering, that every electrical uh, wire, anything that carries current, does have some amount of resistance, some amount of capacitance, and some amount of inductance, although it can vary depending on the way we organize it, the way we see it. So every wire, if even if it's a single wire, it has some capacitance as a parallel plate with the earth, because earth is 0 volt, and the current going across a wire has some voltage. So it's a similar reality of parallel plate capacitors, where the two parallel plates are with are in a space with some voltage difference. And same is the resistance. Whenever there is a current, they got to have some resistance, unless it is a superconductor, which is not a reality in practical sense, practical power systems. And in the same way, every wire has at least a single turn capacitor, inductor, and because of that, it has exhibits some inductive or inductive reactance properties. Now, depending on the magnitude of capacitance and inductance, they both cut each other. We know that, because capacitor tend to take the current lead from the voltage, and inductor tend the current to lag the voltage. And of course, we know that leading and lagging is seen in anti-clockwise fashion. So if I is behind the in anti-clock sense, if it is behind, then it is lagging. If it is higher than the voltage line, then it is leading. And based on trigonometrical factors, we know that because in any way it's a right angle triangle, so its hypotenuse is combination of Pythagoras theorem, same of I square sine theta and I square cos theta or phi, and then becomes its I. So if I is the hypotenuse or the amount of current, its base is I cos phi, and its perpendicular distance AB, for example, in this case is I sin phi. Now, you already know all these things. I don't need to really go into that. And if you multiply by these I cos phi, I sin phi, I with voltage all sides, it becomes power. So true power, apparent power, and reactive power. And the reality of true power is something which is usable. Reality of reactive power is something that is not usable. And the reality of apparent power is that it takes a toll. It's a combination of both true power and reactive power. And as you know that as per the Pythagoras theorem, it's under root true power square plus true plus reactive power square. Just wait, some disturbances are coming. Close the door.
you able to see the screen now, or has it switched off? ऑफ है, ऑन है? मैं समझ नहीं पाया. ऑन है. ऑन है. ओके, गुड. So now there is an so whatever is the magnitude of its reactive power, of course apparent power will also increase with the same fashion, meaning it is under root square. So you can see that reactive power is apparent power into sin phi. And one of the examples which generally people see it, also it's a little bit jovial, but I think you can understand this. I hope you can see this. You must have seen this image. Have you seen this image? So what does it signify? Anyone? तो बताएगा क्या सिग्निफाई कर रहा है ये? सर रियल पावर इज द ओनली पावर विच प्रोवाइड्स एनर्जी. सब बबल्स है वो किसी काम के तो होते नहीं है सर, तो इसी तरह जो रिएक्टिव पावर है वो भी किसी काम की नहीं है. बट इट डज सर वो हाँ मतलब सर वो उसका क्रेडिट ले जाती है पूरी पावर का, उसमें तो कुछ हिस्सा. तो एज ए सप्लायर इफ यू थिंक, जैसे मान लीजिए हम सप्लाई कर रहे हैं, आप सप्लाई इंजीनियर हैं, मीनिंग यू आर एन इंजीनियर एट सप्लाई साइड. So you have to supply kVA, okay, apparent power, but the person who is on the receiving side is only getting kW, kilowatt, and kVAR, that is something that is wasted electricity. So supply देने वाला तो ज़्यादा दे रहा है, लेकिन जो ले रहा है उसको कम मिल रहा है. Okay, in that sense हो सकता है कि ये पिक्चर बहुत श्योर यानी सही ना हो, क्योंकि देने वाला इस केस में जो पिक्चर है आपके सामने उसमें कम ही दे रहा है, उतना ही दे रहा है जितना रियल पावर है. वो झाग तो एक अलग से बन जा रही है. बट इफ वी अप्लाई दिस टू इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह से रियल पावर पूरा का पूरा दिया जा रहा है, reactive power is also being given, but it is being lost because of its some alternating current properties, reactive properties, and that has to be accounted in terms of tariff. जब आप टैरिफ किसी से बिजली का बिल मांगेंगे तो उसमें रियल पावर, क्योंकि उसके यहाँ तो जो रियल पावर है वही सिर्फ काउंट हो सकता है जो कि नॉर्मल एनर्जी मीटर्स होते हैं. रिएक्टिव पावर्स के भी एनर्जी मीटर्स होते हैं, बट जनरली वो हर जगह नहीं लगाए जाते बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट, बिकॉज ऑफ कॉस्ट इश्यूज. सो दैट मीन्स कि जो पावर दे रहा है वो रियल पावर के साथ साथ रिएक्टिव पावर के लिए भी उससे पैसे लेने पड़ेंगे, टैरिफ लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो लॉस में होगा. क्योंकि जस्ट एज्यूम कि अगर हम 100 किलो वोल्ट एम्पियर अगर दे रहे हैं हम, और सामने वाले को जो बिलिंग आ रही है वो सिर्फ 70 किलोवाट की आ रही है, यानी 70 यूनिट की आ रही है, किलोवाट आवर की. तो इसका मतलब हम दे 100 रहे हैं और मिल रहा है 70 का हमें पैसा. सो दैट इज एन इशू दैट हैज टू बी कंसीडर्ड बिफोर डिसाइडिंग टैरिफ. टैरिफ की जब हमने बात की थी तो उसमें डिस्कस किया था. Now, what are the disadvantages of low power factors? This you can see is that the current for a given load supplied at constant voltage will be higher at a lower power factor and lower at higher power factor. This is because if load P is to be supplied at terminal voltage V at a power factor of cos phi in a 3-phase balance system, as an example, जो करंट होगा वो जाहिर सी बात है पावर अपॉन वोल्टेज होगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं पावर इज इक्वल टू VIL cos phi और √3 ऑफ कोर्स फॉर द पर्पज ऑफ 3-phase सिस्टम, बैलेंस सिस्टम. तो अगर P यानी जो पावर दिया जा रहा है वो कांस्टेंट है और जो वोल्टेज जिस वोल्टेज पे सप्लाई हो रही है वो भी कांस्टेंट है, सो हाउ
cos phi is going to affect IL. आपको मालूम है cos phi की वैल्यू जितना ज़्यादा कम होगा करंट उतना ज़्यादा होगा, यानी कहीं ना कहीं ये इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। और अगर cos phi की वैल्यू ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, सेम पावर के लिए और सेम वोल्टेज के लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी पावर सिस्टम में जो सेम होता है वो नेचुरली वोल्टेज होता है टेक्निकली, और पावर हम चाहते हैं कि जितना हम दे रहे हैं उतना ही पहुंचे। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि इकोनॉमिकली पावर भी जो है कांस्टेंट हो, एंड दिस इज व्हाट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू डू। इन दैट केस द टू वेरिएबल्स, √3 of course is a constant, so what really consolidates up to is that IL और cos phi जो है इनवर्स रिलेशन में आ जाता है, और cos phi जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पावर फैक्टर होगा और उतना करंट कम होगा, और करंट कम होना अच्छा है। ओके, फॉर अ सेम वोल्टेज करंट कम होना इज बेटर, इज बिकॉज सेम पावर के लिए जो है करंट अगर कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉसेस हो रहे हैं लाइन में, ठीक है, वो कम होंगे, एंड वी विल सी मोर ऑफ इट। सो व्हाट इज मेंशन फॉर एग्जांपल हियर इज IL is inversely proportional to power factor, that is cos phi. Lower the power factor, higher the current, and vice versa. The higher the current due to poor power factor affects the system and results in following disadvantages. अगर लोअर पावर फैक्टर हुआ, मेरे ख्याल से हम ये जानते हैं कि पावर फैक्टर हम चाहते हैं कि यूनिटी हो, 1 हो। cos phi 1 होने के लिए cos phi में phi क्या होगा, 0 होना चाहिए, यानी ये जो एंगल है यहाँ पे ये 0 होना चाहिए, यानी I cos phi I sin phi एक के ऊपर एक ओवरलैप करना चाहिए आइडियली, ठीक है। और जैसे जैसे पावर फैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे ये एंगल बढ़ता जाता है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये एंगल कम से कम हो। नाउ डिसएडवांटेज क्या है, अगर कॉस फैक्टर बढ़ता है, cos phi बढ़ता है यानी phi बढ़ता है, और जैसे आप समझते हैं cos phi जो है 0, cos 0 1 होता है और cos 1 0 होता है, यानी अपोजिट है ये। तो इस तरह से आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, द रेटिंग ऑफ डिसएडवांटेजेस में रेटिंग ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर आउटपुट करंट, हेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर। यानी पावर फैक्टर ज़्यादा हुआ तो करंट कम होगा, तो करंट कम होने से नेचुरली जनरेटर्स ट्रांसफार्मर का आउटपुट भी कम हो जाएगा, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो करंट कम हुआ तो पावर भी कम हो जाएगा। Therefore, large generators and transformers are required to deliver same load but at a lower power factor. Now, the cross-sectional area of the bus bar, ठीक है, बस बार यानी जिसके क्रॉस करंट को एक्चुअली फ्लो होना है। अगर कम करंट फ्लो होना है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पावर, ये हम हर जगह याद रखें कि पावर की हम कमी की बात नहीं कर रहे हैं, पावर तो सेम ही होगा और वोल्टेज भी सेम होगा। तो अगर वोल्टेज और पावर को सेम करने के बाद अब हम क्रॉस सेक्शन और करंट की बात करेंगे, तो करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन चाहिए हमें बस बार के लिए, यानी जो कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा होना चाहिए अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो। और ज़्यादा करंट फ्लो क्यों होगा, क्योंकि अगर पावर फैक्टर कम है तो करंट ज़्यादा होना चाहिए होगा सेम पावर के लिए, तो करंट ज़्यादा होगा तो फिर क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज़्यादा चाहिए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि करंट ज़्यादा हो या इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल cos phi यानी पावर फैक्टर कम हो। For the same power to be transmitted but at low power factor, the transmission lines or distributors or cables have to carry more current. ये भी सेम बात है, एग्जैक्टली सेम बात जो सेकंड पॉइंट है, सिर्फ इसमें बात आ गई, एक बस बार की बात आई और एक ट्रांसमिशन लाइन की बात आई। जाहिर सी बात है जो करंट बस बार में जाएगा वही आगे चल के ट्रांसमिट भी होगा। तो दोनों ही केसेस में इफ यू वांट टू कैरी मोर करंट, द साइज ऑफ द कंडक्टर हैज टू बी इंक्रीज्ड क्रॉस सेक्शनली, मोटा और हो जाएगा। इफ द करंट डेंसिटी इन द लाइन इज टू बी केप्ट कांस्टेंट, thus more conductor material is required for transmission line. तो पावर फैक्टर कम होने से आप देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन
की थिकनेस ट्रांसमिशन लाइन की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, बस बार की थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी। और पहला पॉइंट हमने देखा कि जनरेटर ट्रांसफार्मर के आउटपुट में कमी आ जाएगी क्योंकि करंट कम आ रहा है। एनर्जी लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, आई स्क्वायर आर लॉसेस। तो पावर फैक्टर किसी कांस्टेंट पावर के लिए अगर पावर फैक्टर कम होगा तो करंट को बढ़ना पड़ेगा, और करंट के बढ़ने से अगेन जो है आई स्क्वायर आर यानी करंट का स्क्वायर और फिर जो भी रेजिस्टेंस रास्ते में मिल रहा है उसे, इन दैट केस होल पावर लॉस विल डेफिनेटली बिकम मच हायर। यानी यही वो वजह है जिसकी वजह से हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं कि चलो वोल्टेज को बढ़ा देते हैं ताकि करंट किसी कांस्टेंट पावर के लिए कम हो जाए। तो अब वो एक इशू है, लेकिन यहाँ पे पावर फैक्टर के कमी की वजह से करंट बढ़ जा रहा है। तो अगेन सेम, लेकिन इशू तो सेम है, करंट जहाँ भी बढ़ेगा तो अपने साथ वो हीट लॉस भी बढ़ाएगा, आई स्क्वायर आर लॉस भी बढ़ाएगा। फिफ्थ पॉइंट है लो लैगिंग पावर फैक्टर रिजल्ट्स इन लार्ज वोल्टेज ड्रॉप इन जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसमिशन लाइन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स विच रिजल्ट इन पुअर रेगुलेशन। रेगुलेशन नेचुरली जो है जितना ज़्यादा रिएक्टेंस होगा उतना ज़्यादा रिएक्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप भी होगा। आई एक्सएल इज एन इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसके पास जो भी करंट जा रहा है तो वो ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो रेगुलेशन की प्रॉब्लम आएगी, यानी जो इनपुट वोल्टेज है और जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें डिफरेंस बढ़ता जाएगा। इनपुट वोल्टेज ज़्यादा होगी और आउटपुट वोल्टेज जैसे जैसे दूर होते जाएंगे उससे वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है लो लैगिंग पावर फैक्टर का। Last point is low power factor reduces the handling capacity of all the equipments of all the elements of the system. कहीं ना कहीं एक कॉमन सी ही बात है, हर जगह ऊपर भी हमने पढ़ा, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, एनर्जी लॉस, साथ ही साथ जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बस बार। तो नेचुरली वो वही बात यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये हैंडलिंग कैपेसिटी पूरे एलिमेंट्स, सारे सिस्टम्स को घटा देता है। So that of course is something which we never want. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? नेचुरली हमें ये जो करेक्शन है, यानी फेज एंगल है, फाई है, जो ट्रू पावर अपरेंट पावर के बीच में है, जो कम से कम होना चाहिए। और कम से कम करने के लिए जो तरीका है वो यही है कि ये जो रिएक्टिव पावर है इसको आप कैपेसिटिव पावर से, यानी रिएक्टिव पावर तो उसे भी कहते हैं कैपेसिटिव की वजह से भी, बट उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कि अगर 15 डिग्री ये लैग कर रहा है तो हम 15 डिग्री लीड कराने की कोशिश करते हैं। उतना ही करंट जितना कि इंडक्टिव आ रहा है और लैगिंग है, उतना ही करंट हम लीडिंग में उस को सप्लाई करते हैं, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस आउट करें और जो अपरेंट पावर है वो ट्रू पावर के जितना करीब हो सके, जितना मुमकिन हो सके उतना करीब हो जाए। अब अगर आप देखें तो हम अच्छा, तो ये एक बात आ गई लो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेजेस के। यहाँ एक और बात आ रही है यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी बात कर रहे थे किस तरह से उसको इम्प्रूव करें, बट दैट्स सेपरेट डिस्कशन। अभी हम बात कर लेते हैं क्या कॉज है, आखिर ऐसा होता ही क्यों है कि ये लैगिंग पावर फैक्टर आ जाए। तो उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि ज़्यादातर जो मशीन्स हैं जो पावर सिस्टम में यूज़ होती हैं वो नेचुरली एसी मोटर्स हैं, और उसमें जो इंडक्टर्स यूज़ होते हैं, और ज़्यादातर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। यानी आप इसे सिंपली ये समझ सकते हैं कि जितने भी मशीनें हैं जो मूव करती हैं, और यहाँ तक कि इंक्लूडिंग ट्रांसफार्मर जो कि मूव नहीं करता, उन सब में भले ही वो एसी मोटर हो, डीसी मोटर हो, सिंक्रोनस हो, इंडक्शन हो, कोई सा भी मोटर हो, एट द एंड ऑफ द डे
it is a combination of lot of inductors, and because of inductors inductive reactance takes place, and because of inductive reactance वो लैग करती है। इसके कंपैरिजन में हम ऐसे डिवाइसेस बहुत कम पाते हैं जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जनरेट करते हैं, और इस वजह से जो ओवरऑल पावर फैक्टर जो होता है वो लैगिंग ही होता है पावर सिस्टम का। ऐसा शायद ही कभी देखा गया हो कि लीडिंग पावर फैक्टर हो किसी भी पावर सिस्टम का, हमेशा लैगिंग ही होता है, क्योंकि जो जनरेटर्स हैं, जो मशीन्स जो यूज होती हैं, जो मोटर्स यूज होते हैं, वो सब के सब जो है प्रीडोमिनेंटली ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर्स, सर ये एक्सेप्शंस हैं, यानी सिंक्रोनस मोटर्स इन जनरल, या और दूसरे जो एसी मोटर्स हैं, यहाँ तक कि डीसी मोटर्स भी एट द एंड ऑफ द डे दे आर एसी मोटर्स ओनली एक्सेप्ट विद कम्यूटेटर्स। So the power factor falls with the decrease in load. For example, an induction motor has a reasonably high power factor of 0.85. फुल लोड पे 85% है, यानी 0.85 पावर फैक्टर है, जो कि बहुत अच्छा है, यानी बट ये है फुल लोड पे। जैसे जैसे लोड कम होता जाता है आप देखते हैं कि ये बढ़ता जाता है 75% पे 0.8 और 50% पे 0.7, सॉरी 75% फुल लोड, 70% हाफ फुल लोड यानी हाफ लोड, और 0.5 हो जाता है 25% पे, और ये इतना कम भी हो जाता है 0.1 बगैर लोड के। तो आप समझ सकते हैं कि बगैर लोड पे अगर एसी मोटर्स को चला रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा हार्म कर रहा है। सिर्फ झाग ही झाग है, और एक्चुअल रियल पावर, ये ट्रू पावर जो है वो बिल्कुल ख़त्म के बराबर है, यानी 10% सिर्फ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा नहीं होगा कि लो पावर फैक्टर हो सिस्टम का, बिकॉज ऑफ सच मशीन्स। देन आर्क लैम्प, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प, they also operate at lagging power factor. Increased supply mains voltage which usually occur during low load period, यानी ऐसा भी होता है कि रात में जो है वो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और उस हिसाब से कंजम्पशन में कमी आ जाती है। ऐसे में जो मैग्नेटाइजिंग करंट है जिसकी वजह से इंडक्टिव रिएक्टेंस पैदा होता है, और फिर पावर फैक्टर पूरे सिस्टम का थोड़ा सा कम हो जाता है जब लोड कम होता है। नेचुरली लोड कम होने का मतलब ये है कि आपका जो शेयर है ट्रू पावर का उसको आपने कम कर दिया, और जो शेयर है रिएक्टिव पावर का वो बढ़ जाएगा। यानी वो कांस्टेंट भी अगर है, और जनरली वो कांस्टेंट होता है, जो कि ट्रांसफार्मर के केस में आपने देखा होगा कि इस तरह से जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे इफिशिएंसी बढ़ती है। इफिशिएंसी बढ़ने का कहीं ना कहीं मतलब यही है कि उसमें जो रिएक्टिव पावर का जो सब्सटेंस था वो था तो कांस्टेंट ही, बट चूंकि जो ट्रू पावर है वो बहुत कम था, तो उस कम की वजह से ओवरऑल परसेंटेज जो है वो रिएक्टिव हो रहा था, और उसकी वजह से इफिशिएंसी कम हो रही थी ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर तो जस्ट एन एग्जांपल है। किसी भी चीज़ में अगर लोड को कम करेंगे आप तो नेचुरली लोड के ही ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करंट आएगा, और जो ट्रू पावर है वो कम होता जाएगा। लेकिन जो रिएक्टिव पावर है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, और वो उसके प्रोपोर्शनेट शुरू में ज़्यादा रहेगी और बाद में कम होगी। इसीलिए लोड जब बढ़ता है तो पावर फैक्टर कम होता है। ये तीसरी वजह थी। द पावर फैक्टर एट विच मोटर ऑपरेट्स फॉल ड्यू टू इम्प्रॉपर मेंटेनेंस। ठीक है, रिपेयर हुआ और वायर जितना था वायर ही कम कर दिया, माउंटिंग जितनी थी माउंटिंग कम हो गई, इस तरह के इश्यूज में भी पावर फैक्टर कम हो जाता है। इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेस सच एज आर्क एंड इंडक्शन फर्नेस ऑपरेट एट अ वेरी लैगिंग। बहुत सारे मशीन्स होते हैं जो काम ही बहुत लो पावर फैक्टर पे करते हैं, जैसे आर्क वेल्डिंग, इंडक्शन फर्नेस, क्योंकि उनके इंडक्शन प्रिंसिपल पे ही उन्हें काम करना है, उसी से वो हीट जनरेट करते हैं, तो नेचुरली वो कम हो जाएगा। यहाँ पे एक लिस्ट है टाइप ऑफ लोड्स की, आप देख सकते हैं।
incandescent lamp, fluorescent lamp, neon lamp, arc lamp, ये सब आप देख सकते हैं कि इनकी पावर फैक्टर्स जो हैं किस तरह से हैं और ये घटते बढ़ते रहते हैं, यानी डिपेंडिंग ऑन। एक मिनट रुकिएगा जरा सा, जस्ट अ मिनट। ओके, सो now we can discuss about the methods of power factor improvement. So basically we can have simply capacitors, and the whole idea about this is using a capacitor. Of course, depending on the situation, we can use it in star or delta or even in series, and based on the configuration we will have, of course, different equations, but in all these equations what we actually mandatorily are doing is that we are transferring reactive power, capacitive reactive power into the system. So by use of synchronous or high power factor machines, we can have, like, by use of synchronous motors. These motors have characteristics that make them adaptable for wide range of applications. The speed is constant, the efficiency is high and uniform from light loads up to considerable overloads, and the starting characteristics compare favorably with those of induction motors. So this is one option of using synchronous motors instead of induction motors, because in any way characteristics are comparable, but synchronous motors do not have from that much low power factor. One is sometimes they also compensate as well, and that is why when they compensate we call it synchronous condensers. So it's an overexcited synchronous motor. An overexcited synchronous motor running on no load is called synchronous condenser or synchronous phase advancer, and it behaves like a capacitor, the capacitive reactance of which depends upon the motor excitation. Power factor can be improved by using synchronous condenser like shunt capacitor connected across the supplies. पैरेलल में लगा देने से भी हो जाता है. या फिर there is something known as by use of phase advancers, with which what we do is we advance the phase. I mean, it is the same way. What we are doing is we are shifting the phase from lagging to leading. The power factor of an induction motor falls mainly due to its exciting current drawn from AC supply mains. Because exciting current lags behind the voltage by 90 degrees, it may be improved by pi by 2. It may be improved by equipping the set with an AC exciter or phase advancer, which supplies this exciting current to rotor circuit at a slip frequency. Such an exciter may be mounted on the same shaft as the main motor or may be suitably driven from it. Use of phase advancer is not generally economical in connection with motors below 150 kilowatt output, but above this size phase advancers are frequently employed. तो एक ही कंसर्न है इसमें कि जाहिर बात है ये एक्स्ट्रा एक इक्विपमेंट है जो आपको ऐड करना है, which actually adds to money cost, and it is proved to be economical only after 150 kilowatt, above 150 kilowatt. उससे पहले इकोनॉमिकल ये नहीं होता. उससे पहले फिर यही आदमी सोचता है कि जो लॉस हो रहा है वही होने दो, इसके लिए अगर कुछ अरेंज करेंगे हम तो वो खुद अपने आप में
कॉस्टली है और जितना फ़ायदा नहीं होगा उतना नुकसान हो जाएगा. So this is what we call trade off. So the trade off और break even point जो है वो 150 किलोवाट के ऊपर ही ये फेज एडवांसेस लगा सकते हैं. यानी फायदेमंद होगा. लगा तो कभी भी सकते हैं, but it is advantageous only then. There are two main advantages of phase advances. Lagging kVA drawn by the motor considerably reduced to supply of exciting ampere turns at slip frequency, and the phase advances can be conveniently employed where the use of synchronous motor is inadmissible. Some places may be that synchronous motors use नहीं हो सकते, तो वहाँ के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है. Then we have the use of synchronous induction motor. These are special types of motor which operate at certain load as synchronous motors and other loads as induction motors. So it's a pair of synchronous cum induction motors. These are special type of motors operate at certain loads where some of them are used by synchronous motors and some of the loads are done by induction motors. So they kind of balance each other. Now the use of high power factors motors is of course another option which can be used for this. So this is all about the discussion that we have to have. Although there is a topic discussion called location of the power factor correction equipment, but I think this you will study in if you pursue MTech, and this is generally belong to a higher study. So this is all about power factor improvement. What is power factor? What are the advantages? What are the causes? How can we improve it? If you have any question, you can discuss. Also, if you remember, we did discuss about power factor tariffs. If you can see it, this is power factor tariffs. So that tariffs of course include the पावर फैक्टर इशू. और जो एग्जांपल हमने पेश किया था झाग वाला, तो वो झाग के भी पैसे लेते हैं बिकॉज दे एक्चुअली सप्लाई दैट. सो सिंस दिस डिस्कशन इज विद इन द गैम्बिट ऑफ टैरिफ एंड पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, so we have to understand that power factor improvement does have share in the decision of the tariff. तो खैर इस पे सवाल हो किसी का तो कोई पूछे इंशाल्लाह, अदरवाइज वी विल गो टू आवर यूनिट नंबर 2. एनी क्वेश्चन? कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं. आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द इश्यूज. रैदर जितना था उससे ज़्यादा ही कवर किया हमने. यूनिट 1 कॉस्ट ऑफ most of the, in fact everything that is there in here has already been discussed in unit 1. So now we will go to our unit number 2, which is thermal power plant. Basically it's a thermal power plant, and this thermal power plant is also just connected with coal based thermal power plant, because we have a topic on, let me see, okay, no, nuclear power plant is also part of this same unit number 2. So we got to have two thermal power plants discussion in this. One is coal based thermal power plants, and one is nuclear fuel based thermal power plant. So we have both the discussion in this unit number 2. However, our third unit is I think dominated by only hydroelectric, and fourth is a coordination between hydrothermal, and then we have renewable energy sources in unit number 5. So okay, so we'll start with our unit number 2 from next class, most likely tomorrow, and we'll discuss about coal based thermal power plant. So we can stop the class. You can give your attendance.